آج ہماری ذمہ داریاں ہیں. قرآن پاک کی آیت سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, سورۃ الاحزاب ہے, فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. عرب کے کلچر کے اندر یا دنیا کے کلچر کے اندر دو عورتوں کے دو الگ الگ لباس ہوا کرتے تھے. ایک عورتوں کا لباس ایسے کہ وہ پورے جسم کو نہ ڈھانکے, بال اس کے دکھتے رہے, اس کے جسم کے دیگر اعضاء کھلے اور مکمل طور پر ڈھکے ہوئے نہ ہو, کپڑے چھوٹے چھوٹے ہو. یہ اس قسم کا لباس, اور اس جیسی مجبوری تھی, فقیری تھی, کپڑے پہننے کو نہیں تھے. وہ لباس دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے کہ یہ بیچاری کا گھردار نہیں ہے, یہ کسی کی باندی ہے, یہ کسی کی غلام ہے, اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا گھردار ہی نہیں ہے. یہ ان قسم کے لوگ تھے. دوسرے جو گھر والی خواتین ہوتی, گھر, خاندان, شوہر, بچے, ایک اس کی اپنی تہذیب و ڈگنیٹی والی قوم, وہ عورتیں وہ پورا مکمل لباس پہنتی, اپنا سر ڈھانکتی, اپنے گریبان, اپنے آزو بازو پوری ڈھانک کر کے نکلتی. اور یہ ان کے شریف گھرانے کی عورتیں ہونے کی نشانی تھی کہ ان کے دل کا سکون, ان کا چین سب گھر میں موجود ہے. ان کو کوئی باہر والوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ان کا حسن دیکھ کر کے واہ واہ کہے. ان کا سکون, چین سب گھر میں ہے. اب جو بازار ہے اس میں کوئی ضرورت سے نکل رہے ہیں تو ضرورت کے مطابق اپنے اعضاء, اپنے چہرہ وغیرہ جو بہت ضروری ہے دکھائیں گے, ورنہ تو حسن دیکھنے والے تو گھر میں موجود ہیں. یہ دو قسم کے لوگ تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل, آپ فرما دیجئے, لازواجک, اپنی ازواج مطہرات کو, اپنی بیویوں کو. اللہ اکبر. کس کا پروٹوکول نازل ہو رہا ہے, کس کا لباس نازل ہو رہا ہے؟ امہات المؤمنین کا, حضور کی بیویوں کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا, امت کی ماؤں کا. کیسی مقدس ہے. فرمایا آپ ان کو فرما دیجئے. اور کس کو فرمائیے؟ وَبَنَاتِكَ, آپ کی صاحبزادیوں کو فرمائیے. حضور کی صاحبزادیاں, شہزادیاں, جنت کی عورتوں کی سردار, ان کے بارے میں اللہ لباس نازل کر رہا ہے, پروٹوکول نازل کر رہا ہے. دنیا کے اندر اگر عزت ہو سکتی ہے تو یہی گھرانے کو مل سکتی ہے, یہ گھرانے کی عورتوں کو مل سکتی ہے. جو مقام, جو ڈگنیٹی, جو وقار اور جو زینت والا لباس, ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں یدنین قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی صاحبزادیوں کو, اپنی بیویوں کو, اور ساتھ میں اسی فہرست میں نیچے امت کی بیٹیوں کو, امت کی عورتوں کو, مومن گھرانوں کی بیویوں اور بچیوں کو, ان کو بھی کہہ دیجئے. اندازہ کرے کیا محبت ہے اللہ کے. جو مقام اور جو یعنی لباس اللہ حضور کی ازواج مطہرات کے لیے مقرر کر رہے ہیں, وہ آپ کی گھر کی بیٹیوں کے لیے فرما رہے ہیں. حضور کی بیٹیوں کو جو لباس دے رہے ہیں وہ میری بہنوں بیٹیوں کو فرما رہے ہیں. کہاں ہم, کہاں وہ. لیکن اللہ رب العزت جب عزت دینے کا مقام آتا ہے کہ نبی کی بیٹیوں کے جو عزت دار لباس ہے, آپ وہی لباس اور وہی ڈریس کوڈ بتائیے امت کی بیٹیوں کو بھی. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, ان کو آپ حکم دیجئے کہ وہ اپنی چادر کو کچھ نیچے تک سرکا لیں, نیچے تک ڈھلکا لیں. یدنینا, ادنا یدنی کے معنی ہے اسے نیچے تک جھکا لینا. جلابی بہن یعنی ان کی شال, ان کا جو کپڑا ہے, یعنی سر سے اور نیچے تک جہاں ان کی آنکھیں, ان کے ناک وغیرہ چھپ جائے. اس زمانے میں اس طریقے کا نوز پیس کی کوئی رواج نہیں تھا, لیکن پورا چہرہ ڈھکتا تھا. اس کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ذَلِكَ أَدْنَا أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. باہر نکلو تو لوگ اوباش قسم کے نوجوان
आवारा फिक्र रखने वाले नौजवान हर वक्त मौजूद रहे हैं, लेकिन जिस वक्त तुम ये मुहज्जब लिबास पहन के निकलते हैं तो वो नौजवान समझ जाते हैं कि ये शरीफ घराने की औरतें हैं, ये पाकबाज औरतें हैं, गुनाह में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, आवारगी में इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग अपने आप को रोक लेंगे। ऐ उम्मत की बेटियों, तुम अपने आप का इंटेंशन और अपना वकार अपने लिबास के जरिए जाहिर करो, और समझ जाएंगे वो औबाश, पलट जाएंगी उनकी निगाहें और वो बेपर्दा औरतों की तरफ जाएगी। तुम्हारा पर्दा तुम्हारा वकार है, तुम्हारी डिग्निटी है, तुम्हारी पहचान है। ज़ालिका अदना अन युरफ़न, ये तुम्हें पहचान दिलाने के लिए काफी है। शरीफ औरतों का लिबास बुर्का है। मुहज्जब खवातीन, खानदानी खवातीन, घरदार वाले, शौहर बच्चे वाले और इज्जतदार, गुनाहों से पाक औरतों का लिबास पर्दा, बुर्का ही नहीं, कोई शॉल भी ओढ़ रहा है, कोई अपने आप को कोई ओढ़नी से ढक रहा है, कोई हिजाब, ये तमाम चीजें चाहे वो किसी मजहब की होगी, सिर्फ इस्लाम की नहीं, किसी मजहब की होगी, उसका ड्रेस कोड उसकी तबीयत को अक्कास होता है, उसकी तबीयत को बतलाता है। कुरान कह रहा है। अजीजान गिरामी, ये औरतों को हुक्म दिया। आप कहते हैं औरतों को ही कहते हैं, मर्दों को नहीं कहते। सुनिए मर्दों को क्या कहते हैं। औरतों के लिए हुक्म है कि तुम बाहर निकलो तो इस तरीके से निकलो, और मर्दों को क्या हुक्म है, कान खोलकर सुने नौजवान। आज औरतें बेपर्दा हो रही है, बाहर निकल रही है, तो हमारे भी आंख खराब हो रहे हैं, हम भी बेपर्दगी को देख रहे हैं, अंजाम से बेखबर है, आंखों की लज्जत ले रहे हैं और उसके आदी हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन नज़रा इला महासिनी इम्रअतिन अजनबिय्यतिन अन शहवतिन सुब्ब फी ऐनैहि, हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स किसी औरत की तरफ निगाह बढ़ा करके देखता है, उसके हुस्न को देखता है और शहवत की निगाह से देखता है, देखते हुए उसके दिल में ख्वाहिश और दिल के अंदर मजा पैदा हो रहा है, तो सुनो अल्लाह उसकी निगाहों को देख रहा है। क़यामत के रोज उसकी आंखों में सीस पिघला के अल्लाह डालेंगे। फरमाया अगर कोई औरत निकल भी रही है, पर्दे की मुकम्मल पाबंदी नहीं कर रही है, तो मर्दानगी का तकाजा यह है कि वह अपनी आंखों को झुका ले। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ हबीब आप अपने मोमिन बंदों को, मोमिन उम्मतियों को फरमा दे, मर्दों को, कि वो अपनी निगाहों को नीची कर ले। औरतों की अपनी निगाहों से औरतों के पर्दे को चाक न करें, उनकी इज्जत को चाक न करें। अजनबी औरत आ जाए तो निगाह अपनी नीची कर ले, ये तुम्हारी मर्दानगी है, तुम्हारी ईमानदारी है, तुम्हारी हया है, तुम्हारी शर्म है। और साथ में वकुल लिल मुमिनात, और मोमिनात से कह दे यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, कि जब उनके सामने भी कोई गैर महरम मर्द आ जाए तो वो भी शर्म और हया की वजह से अपनी निगाहों को नीचे कर ले। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको अर्ज करता हूं, इस्लाम पर जब बात हो तो पूरे कल्चर पर बात हो। आप सिर्फ हिजाब पर गुफ्तगू करने के लिए टीवी चैनल पर बैठ रहे हैं और कोई तैयारी के बगैर बैठ रहे हैं, तो आप कभी भी इस्लाम को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे स्कॉलर्स बैठ रहे हैं जिन्हें कुरान की आयत पढ़ने नहीं आता, जिन्हें इस्लाम के कल्चर से वाकिफियत नहीं है। आप देखें, पूरा कल्चर इस्लाम का पूरी एक इमारत है और पर्दा उसका एक हीरा और एक डायमंड है। आप डायमंड को सबसे तोड़कर अलग पेश करना चाहेंगे, उसके हुस्न का इजहार नहीं कर पाएंगे। आप इस्लामिक कल्चर को बताएं। मैंने दो मिसालें, दो बड़ी बड़ी दोनों कल्चर के दरमियान जो माबिहिल इख्तिलाफ चीजें जिक्र की कि वेस्टर्न कल्चर क्या चाहता है, इस्लामिक कल्चर क्या चाहता है। इस्लाम के पास बड़ी तेजी से तरक्की अगर पूरे इन हुदूद में होकर रहती है तो कबूल है। हुदूद को फलान कर, औरतें अपनी इज्जत नीलाम कर कर, घर का माहौल छोड़कर, उनकी अपनी पूरी डिग्निटी खराब कर कर चंद रुपये कमाती है, तो ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर तुझे अपना जिस्म दिखाना पड़ रहा है, जिसे आपको अपने हुस्न बेचना पड़ रहा है, जिसे अपनी निस्वानियत बेचना पड़ रहा है,
जिससे तुम्हें अपनी यानी अपने मां पने को बेचना पड़ रहा है। तुम मां नहीं बन सकती, मां जैसी इज्जत तुझे नहीं मिल सकती घर के अंदर, तो क्या है वो सोसाइटी जो तेरी जवानी की तो रेस्पेक्ट करे और बुढ़ापे में पलट कर ना पूछे, ऐसी सोसाइटी के साथ क्या वफादारी करें। तो बात हो तो पूरे कल्चर पर हो। अजीजान गिरामी, मैं यहां पर आपको अर्ज करना चाहता हूं 2-3 बातें। बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़े दिल पर मैं बड़ी गहरी चोट के साथ ये बात आपको अर्ज करता हूं। इसके अंदर इस्लाम के अहकाम इतने खूबसूरत और इतने साइंटिफिक है और इतने लॉजिकली तौर पर इतने मुनज़्ज़म है कि किसी को, पूरी दुनिया को मैं अर्ज कर रहा हूं, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया तलाक के मसले के ऊपर। तलाक का मसला इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए शायद हम लोग सही एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके हुस्न को नहीं बता सके, और अगर सही तौर पर कुरान की तर्जुमानी हम करते तो तलाक का मसला ही लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करने का बहुत बड़ा जरिया होता। हमने ये मौके को खो दिया। अब हिजाब का मामला है, बड़ी तेजी से उठ गया है। आज इस्लामिक स्कॉलर्स की जिम्मेदारी है, हमारे मॉडर्न तालीम याफ्ता नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो इस हिजाब के पूरे मसले को पढ़े और साइंटिफिक अंदाज में, उनकी जबान में लोगों को समझाएं कि हिजाब होता क्या है। मैं मानता हूं कि आज हिंदुस्तान भर के अंदर इस्लामिक स्कॉलर्स जैसी खिदमत करना है नहीं कर पा रहे हैं, वो जैसे लोगों को मुतमईन करना है नहीं कर पा रहे हैं। मैं बड़ी माजिरत के साथ पूरे इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमा से मुखातब हूं कि कौम अपना चंदा दे करके, अपना रुपया दे करके मदरसे चलाती है इस उम्मीद में कि इस्लाम का वकार और इस्लाम की डिग्निटी, इस्लाम के तमाम रिवाज और सुन्नत और मुस्तहब्बात की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब कभी मुसीबत आए तो उलमा आगे बढ़ करके रहनुमाई करे और हमें बचाए, इस्लाम को बचाए, इस्लाम के रिवायात को बचाए। लेकिन आज मदारिस और उसके तलबा इसके लिए बहुत पीछे हो गए हैं। इसकी वजह से उम्मत इंतशार का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है। खतरा आने से पहले भाग कर खुद उम्मत मुस्लिमा को मुतमईन करने का यह काम हमारे स्कॉलर्स ने नहीं किया, हमने नहीं किया। आज ये कंफ्यूजन गैरों में नहीं, ये आप बैठे हुए हजारों लोग मेरे सामने हैं, आपके अंदर खुद कंफ्यूजन है कि पर्दा क्या है, हिजाब क्या है, कितना है, कैसा है, ये एसेंशियल है या नहीं, जायद है, फर्ज है या नहीं है, इसलिए औरतों के लिए कैद है या नहीं है। ये तमाम चीजों में खुद हमारी कौम कंफ्यूज है। हमारे अपने इस्लामिक स्कॉलर्स मुतमईन नहीं कर पाए आज तक। यह हमारी अपनी कमजोरी है। इस्लाम वाज़ेह है, कुरान के अहकाम क्लियर है, लेकिन समझाने के लिए अवाम की यानी नफ्स तक पहुंच करके नहीं, हमने मुतमईन नहीं किया। यह तो अल्लाह का एहसान है, याद रखें। बड़ों ने बड़ी बारीक बात कही है कि रब्बुल आलमीन किसी बड़ी बड़ी तंजीमों का मोहताज नहीं है, बड़े नामवर शख्सियात का मोहताज नहीं है, बड़े बड़े लेबल्स और बड़े ब्रांड का मोहताज नहीं है। कभी अपने दीन की हिफाजत करवाना है तो छोटी से छोटी शख्सियत से करा लेता है। हिंदुस्तान के अंदर हजारों मिल्ली तंजीमें हैं, बड़े बड़े बोर्ड से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे बहुत बड़े बड़े चीजें यानी इस्लामिक तंजीमें मौजूद है। ये सब मिलकर भी हिजाब का उतना दिफा नहीं कर पा सकते थे जितना एक लम्हे और 2 मिनट के अंदर वो औरत ने कर दी। वो एक बच्ची जो बिल्कुल नामालूम थी, उसे खुद अंदाजा नहीं था। अल्लाह के दीन और उसके अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए अल्लाह कभी भी किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यह बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तंजीमों के लिए अलार्म है कि कहीं अल्लाह आपको अपनी फहरिस्त से निकाल न दे कि बस बहुत हो गया है आपके नाम, आपके अपने नाम, अपने ब्रांड, लेकिन अल्लाह आपसे काम लेना चाहा तो लेगा, नहीं तो नहीं। वो एक लड़की ने पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर पर्दे के चाहने वालों को उठा दिया है। जो काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था, जो नहीं कर पाए, क्या आपको अंदाजा नहीं था कि किसने एक एक पै दर पै करके इस्लामी रिवायात पे हमले किए जा रहे हैं?
औरतों की निकाह की उम्र को बढ़ा दिया गया। इससे पहले तलाक का मामला, अब ये पर्दे का मामला। क्या नहीं समझ में आ रहा है कि मुस्लिम औरतें निशाने पर है? क्या ये अंदाजा आपको नहीं है कि उनकी स्टडीज ये बता दी है कि नौजवानों में जुर्रत ये औरतों की वजह से पैदा होती है। इनकी तरबियत का पहला मरकज इनकी माएं हैं। अगर ये बापर्दा हो, गुनाहों से बची हुई हो, इफ्फत और इस्मत वाली हो, तो इनके गोद से जियाले ईमान के, यानी जियाले और ईमान से मोहब्बत पैदा करने वालों की पैदाइश को कोई नहीं रोक सकता। ये समझ गए हैं, इस वजह से औरत के तलाक का मसला ला करके वहां औरत को गुनाहगार कर रहे हैं, निकाह की उम्र में बढ़ा करके वहां औरत के निजाम को बिखेर रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो रहा है कि इस्लाम मुसलमानों के पास जहां मर्द कमजोर होते हैं तो औरतें ठहर जाती हैं। इन औरतों को कमजोर करो ताकि इनके कोख से कमजोर नस्लें पैदा हो। क्या इसका अंदाजा एक आम इंसान को हो सकता है तो हमारी बड़ी तंजीमों को नहीं हो सकता? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े बड़े जिम्मेदारों से दस्त बस्ता एक बहुत ही कमजोर तालिब इल्म की हैसियत से मारूजा करता हूं कि खुदा के लिए संजीदा हो जाइए। हम जानते हैं कि आप ज़ईफ हो गए हैं, आप लोग कमजोर हो गए हैं, आपकी अपनी बीमारियां हैं, तो आप अपने पास से दूसरी सफ के कायदीन को पैदा करें, ठहराएं, नौजवानों को लाएं, आपकी निगरानी में काम लें, ताकि दूर अंदेशी से देखें कि मुस्तकबिल में और कितनी चीजें हमारी है जिसके ऊपर आवाज उठेगी, उसकी कबल अज वक्त तैयारी हो, मुसलमानों में शऊर बेदार हो। सिर्फ एक काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रह गया है, वो ये कि हर मामले को अदालत तक जाने का इंतजार करो, फिर अदालत से फैसला आए तो लोगों को कहो कि अदालत का फैसला मानना जरूरी है और खामोश बैठ जाओ। तलाक के मामले में यही हुआ, बाबरी मस्जिद के मामले में यही हुआ। हर मामले में पहले से कोई तैयारी नहीं, किसी किस्म की कोई पहले से शऊर बेदारी मुहिम नहीं, कोई इंसान के यानी इंडिविजुअल तौर पर कोई काम नहीं। आखिर में यह कि अदालत में हम गए, इतने लाखों रुपये लगाए, पैरवी किए, अब अदालत से हार गए, लिहाजा अदालत का हुक्म मानना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़ों ने क्या तालीम दी आपको बताता हूं। आखिरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक सदर थे मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े मुफक्किर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यकीनन हिंदुस्तान की सरजमीन से हमें मोहब्बत है, हमें बड़ी वालिहाना मोहब्बत है, और हम इस सरजमीन पर रहेंगे, वफादारी से रहेंगे और हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बदले में हमसे यह पूछते हैं कि आप अपने दीन से कुछ लूज हो जाएं और कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो कान खोल कर सुनो। फराइज तो बहुत दूर की बात है, फराइज और वाजिबात पे कॉम्प्रोमाइज तो पूछना बहुत दूर की बात है। इस सरजमीन पर रहने के बदले में अगर आप हमसे यह पूछते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी कभी की जाने वाली एक सुन्नत को हमेशा के लिए छोड़ दो, तो हम पूरे हिंदुस्तान में रहने की यह कीमत देने के लिए भी तैयार नहीं है कि एक नफिल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तुम फराइज के लिए क्या बात करते हो? हम सरजमीन हिंदुस्तान पर रहेंगे, लेकिन उसकी कीमत शरीयत नहीं बनेगी, उसकी कीमत दीन नहीं बनेगा। हमारी गर्दनें बन सकती, हमारी सब कुछ लुट सकता है, लेकिन दीन नहीं बनेगा। एक और बात कोट करता हूं उन्हीं की, वो फरमाते हैं कि अगर पूरी उम्मत 25 करोड़ मुसलमान तहज्जुद गुजार हो जाए, 5 वक्ता नमाजी हो जाए, रोजा ज़कात देने वाले हो जाए, लेकिन उनके अंदर सियासी तौर पर कोई शुऊर न हो, हिंदुस्तान में चलने वाले हालात की दर्क न हो, उसका शुऊर न हो, तो याद रखें वो आपकी तहज्जुद, वो आपके फर्ज नमाजें, वो तमाम मिलकर भी आपको कामयाब नहीं कर सकेंगे। कामयाबी के लिए आपको सियासी शुऊर और आपके अंदर की एहसास और आपके अंदर की बेदारगी जरूरी है, और प्लानिंग और मजबूती जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद भी पढ़ते थे और दिन में मंसूबा भी बनाते थे। आपकी शरीयत को दुनिया के सामने अच्छे अंदाज में पेश करने की जिम्मेदारी आप पर है और मुझ पर है और हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ के जिम्मेदारों पर है। मैं इस मौके पर अगर कोई बात जायद कह दिया हूं तो मैं हमारे बुजुर्गों से, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बुजुर्ग हैं, उनसे माफी का खासगार हूं। मेरे अल्फाज पे न जाएं, लेकिन मेरे दिली जज्बात को समझें। आप दूसरी सफ के कायदीन को ठहराए, अपनी निगरानी में तैयार करें।
بہت بڑا معرکہ ہے اور بڑی تیاری کی ضرورت ہے. ابھی تک تو جو کھویا ہے, آئندہ کیا کیا کھونے ہیں ہمیں اندازہ نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے, رب العالمین مسلمانوں میں ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے. مالک امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما, امت کی ماؤں کی حفاظت فرما, ان کی ایمانی جرت کی پروردگار.